ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب اسے خود فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ دوسرے نہیں کر سکتے۔ جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی ڈھونڈنا جانتا ہو وہ دنیا کا سب سے خوشحال انسان ہے، کیونکہ بڑی خوشیاں تو کبھی کبھی آتی ہیں مگر چھوٹی خوشیاں ہر لمحے موجود ہوتی ہیں۔ جو سورج ڈوبتا ہے وہ اگلی صبح پھر طلوع ہوتا ہے، اسی طرح جو انسان گرتا ہے اگر اس کے اندر ہمت ہو تو وہ بھی پھر اٹھتا ہے اور پہلے سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ جس کام میں تمہارا دل نہ لگے وہ کام تمہاری زندگی نہیں بلکہ تمہاری قید ہے، اس لیے اپنی صلاحیتوں کو وہاں لگاؤ جہاں تمہاری روح بھی راضی ہو۔ انسان کی اصل آزادی یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ کو خود طے کرے اور کسی کے خوف لالچ میں آ کر وہ نہ کہے جو وہ نہیں مانتا، کیونکہ یہی بندگی کا اصل رنگ ہے۔ جو شخص بڑوں کی عزت کرے، بچوں پر شفقت کرے اور برابر والوں کے ساتھ انصاف کرے وہ ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اخلاق کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ دنیا تمہیں وہی دیتی ہے جو تم دیتے ہو۔ اگر تم محبت بانٹو تو محبت ملتی ہے، اگر نفرت بونا تو نفرت کاٹنا پڑتی ہے، اور اس قانون میں کوئی استثنا نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے آپ کو نہ جانتا ہو وہ دنیا میں بھٹکتا رہتا ہے، کیونکہ سمت اسی کو ملتی ہے جو پہلے خود کو جان لے اور پھر اپنی منزل طے کرے۔ آج کا ایک قدم کل کی ایک منزل ہے، اس لیے چھوٹے قدم کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ لمبا سفر ہمیشہ پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کو غنیمت جانے وہ اس دنیا میں بھی سکون میں رہتا ہے اور اگلے جہان میں بھی، کیونکہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اپنی توانائی ان لوگوں پر مت لگاؤ جو تمہیں قبول نہیں کرتے، بلکہ انہیں دو جو تمہاری قدر کرتے ہیں، کیونکہ توانائی محدود ہے اور اسے صحیح جگہ لگانا ضروری ہے۔ جو لوگ اپنی تکلیف چھپا کر دوسروں کو ہنساتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بہادر لوگ ہیں۔ ان کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ تمہاری توجہ کے مستحق ہیں۔ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، بس ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے۔ یہ قانون قدرت کا ہے جو کبھی بدلا نہیں اور نہ بدلے گا۔ انسان جب اپنی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے تو وہ دوسروں کو الزام دینا بند کر دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کی اصل ترقی شروع ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے وعدے نبھاتا ہے وہ دنیا میں اپنا نام بناتا ہے، اور جو وعدے توڑتا ہے وہ ایک دن اکیلا کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ وعدہ خلافی کبھی نہیں بھولتے۔ جو آج تمہیں نظر انداز کرتے ہیں وہ کل تمہاری کامیابی کا ذکر کریں گے، بس تمہیں اتنا صبر رکھنا ہے کہ تم ان کا انتظار کیے بغیر چلتے رہو۔ جس گھر میں ماں کی دعا ہو اس گھر کی مشکلیں بھی آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، کیونکہ ماں کی دعا وہ طاقت ہے جو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ کبھی کبھی زندگی تمہیں اس لیے تنہا کر دیتی ہے تاکہ تم اپنے اندر کی آواز سن سکو جو بھیڑ میں دب جاتی ہے اور جس کے بغیر تمہاری اصل سمت کا تعین ممکن نہیں۔ جو انسان ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں گنتا رہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کبھی وقت نہیں نکال پاتا، اور آخر میں ہاتھ میں صرف دوسروں کا حساب رہتا ہے۔ اپنے دشمن کو بھی انسانیت کی نظر سے دیکھنا سیکھو، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے آپ سے بڑا ہو جاتا ہے اور دنیا کی نظر میں واقعی عظیم بنتا ہے۔ وہ کام جو تمہیں ڈراتا ہے اکثر وہی کام تمہاری سب سے بڑی فتح بن جاتا ہے، کیونکہ ڈر سے پار جانے والوں کو ہی پتہ چلتا ہے کہ دوسری طرف کیا ہے۔ کسی کی مدد کرنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے، مگر کسی کو اتنا بے بس کر دو کہ وہ مدد مانگنے پر مجبور ہو، یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عزت نفس انسان کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ جو انسان اپنے دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کرتا ہے اس کا پورا دن ایک خاص سکون کے ساتھ گزرتا ہے جو دوسروں کو سمجھائی نہیں دیتا، بس محسوس ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے کام سے محبت کرتا ہو وہ کبھی تھکتا نہیں، کیونکہ محبت سے کیا ہوا کام بوجھ نہیں بنتا، اور جو بوجھ نہ ہو اس میں انسان اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے۔ تمہاری خامیاں تمہیں انسان بناتی ہیں، مگر ان پر قابو پانے کی کوشش تمہیں عظیم انسان بناتی ہے، اس لیے اپنی کمزوریوں سے نہ بھاگو بلکہ ان کا سامنا کرو۔ جن لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے وہ کم بولتے ہیں، اور جن کا اعتماد نہیں ہوتا وہ ثابت کرنے کے لیے زیادہ بولتے ہیں مگر کم سمجھے جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ بدلنا ضروری ہے مگر اپنی اقدار کو بدلنا نہیں، کیونکہ جو پانی کی طرح ہر برتن کی شکل اختیار کر لے اس کی اپنی کوئی شکل نہیں رہتی۔ دوسروں کی کامیابی سے حسد مت کرو بلکہ اس سے سیکھو اور اپنا راستہ بناؤ، کیونکہ تمہاری منزل الگ ہے اور تمہارا سفر بھی الگ ہونا چاہیے۔ جس معاشرے میں بزرگوں کی عزت نہ ہو وہ معاشرہ بنیادیں کھو دیتا ہے، کیونکہ بزرگ وہ خزانہ ہوتے ہیں
जिनमें तजर्बे का वो सूना है जो किताबों में नहीं मिलता। जो लोग तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं उन्हें बेहतरीन जवाब यह है कि तुम खामोशी से काम करते रहो और एक दिन कामयाब होकर उनके सामने खड़े हो जाओ। इंसान की सबसे बड़ी खुशकिस्मती यह है कि इसे एक ऐसी माँ मिले जो इसकी अच्छाई में खुश हो और इसकी बुराई में दुआ मांगे और साथ ना छोड़े। सच बोलने की आदत डालो चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो, क्योंकि झूठ का वजन बढ़ता रहता है और एक दिन वो इतना भारी हो जाता है कि इंसान इसके नीचे दब जाता है। जो शख्स अपने माजी का कैदी है वो अपने मुस्तकबिल की चाबी कभी नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि आगे चलने के लिए पीछे देखना छोड़ना पड़ता है। दुनिया में सबसे बड़ा एजाज ये है कि कोई मुसीबत में तुम्हारा नाम ले और ये यकीन रखे कि तुम जरूर मदद करोगे, क्योंकि ये भरोसा बरसों के इखलास से कमाया जाता है। अपनी नाकामियों को अपनी कहानी का अंजाम मत समझो, बल्कि उन्हें अपनी कहानी का एक अहम मोड़ समझो, क्योंकि बड़ी कहानियां हमेशा किसी अहम मोड़ के बाद ही शुरू होती हैं। जो शख्स बगैर किसी फायदे के तुम्हारा भला चाहे इसे जिंदगी में अपना सबसे कीमती खजाना समझो, क्योंकि ऐसे लोग किस्मत वालों को मिलते हैं। तुम्हारा किरदार तुम्हारी असल दौलत है और ये वो दौलत है जो ना चोरी हो सकती है ना लौटी जा सकती है, बशर्ते कि तुम खुद इसे अपने हाथों से ना गनवा दो। जिंदगी में वो लोग सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं जो हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपनी खुशी भूल जाते हैं। याद रखो तुम सबके नहीं हो सकते। जो हुआ वो तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन जो होने वाला है वो अभी तुम्हारे हाथ में है। इसलिए माजी को सीने से लगाए बैठने के बजाय मुस्तकबिल को संवारने में लग जाओ। हर इंसान को जिंदगी में एक ऐसा उस्ताद मिलता है जो इसे याद रहता है, और अगर तुम नसीब वाले हो तो तुम्हें ऐसा उस्ताद मिलता है जो तुम्हें खुद से मिलवाता है। अपने बारे में दूसरों की राय को हतमी मत समझो, क्योंकि जो तुम्हें जानता ही नहीं वो तुम्हारे बारे में सही राय कैसे दे सकता है। बस खुद को जानो। वो दोस्त सबसे कीमती होता है जो तुम्हारी तारीफ कम और रहनुमाई ज्यादा करे, क्योंकि तारीफ तुम्हें खुश करती है और रहनुमाई तुम्हें बेहतर बनाती है। मेहनत को अपनी इबादत बना लो और फिर देखो कि किस तरह आसमान से मदद उतरती है, क्योंकि अल्लाह इसका साथी है जो कोशिश करे और तवक्कल भी रखे। अपने बच्चों को ये सिखाओ कि मुसीबत में घबराना नहीं बल्कि हल ढूंढना है, क्योंकि यही वो सबक है जो उन्हें जिंदगी भर काम आएगा। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं उन्हें अल्लाह पर छोड़ दो, और जो तुम्हारे हाथ में हैं उन्हें पूरी मेहनत से करो। यही तवक्कल का असल मतलब है। एक अच्छा रिश्ता वो नहीं जिसमें कभी लड़ाई ना हो, बल्कि वो है जिसमें लड़ाई के बाद भी एक दूसरे की कदर कम ना हो और मुआफी देना मुश्किल ना लगे। जो शख्स खुद से राजी हो वो दुनिया से भी राजी रहता है, और जो खुद से नाराज हो वो दुनिया की हर चीज में बुराई ढूंढता रहता है और कभी चीन नहीं पाता। कामयाबी को हजम करना नाकामी को हजम करने से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि नाकामी में इंसान सीखता है मगर कामयाबी में अक्सर भूल जाता है कि वो क्यों कामयाब हुआ। जो शख्स अपने अल्लाह से रोज सचमुच बातें करे वो कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि इसका एक ऐसा साथी होता है जो कभी जाने वाला नहीं होता। दूसरों की कामयाबी पर ताली बजाना सीखो, क्योंकि जो दूसरों की खुशी में खुश होता है वो खुद भी जल्द खुशी का हकदार बन जाता है। जिंदगी में जो लोग सबसे ज्यादा खुश नजर आते हैं वो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा खुश हों, क्योंकि सच्ची खुशी अंदर से आती है और बाहर से नहीं दिखाई देती। जो शख्स हर हाल में दूसरों की मदद करे वो कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि जब इसे मदद की जरूरत होती है तो वो लोग आगे आते हैं जिन्हें इसने कभी याद रखा था। नींद से पहले अपने दिन का हिसाब लो कि आज किया अच्छा किया और किया बुरा। इस छोटे से एहतिसाब से बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी वो होगी जब तुम वो बन जाओ जिसकी तुमने एक दिन तन्हाई में कामना की थी और किसी को नहीं बताई थी। दुनिया का हर बड़ा शख्स कभी ना कभी आम इंसान था। फर्क सिर्फ ये है कि इसने अपने अंदर की आवाज सुनी और दुनिया की परवाह किए बगैर इस पर चल पड़ा। वक्त की पाबंदी एक छोटी सी आदत लगती है, मगर ये छोटी आदत बता देती है कि तुम अपने काम को और दूसरों को कितना अहम समझते हो। जिम्मेदारी से भागने वाला कभी बड़ा नहीं बनता, क्योंकि बड़े मकाम के लिए बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और ये बोझ कंधे मजबूत करता है। फैसला करने की सलाहियत ही वो चीज है जो एक आम इंसान को गैर मामूली बनाती है, क्योंकि जो फैसला नहीं कर सकता वो आगे भी नहीं बढ़ सकता। अपने हम मनसबों से सीखो, अपने मातहतों की बात सुनो और अपने बड़ों का एहतराम करो। ये 3 आदतें तुम्हें हर जगह कामयाब करेंगी। नेटवर्क बनाना जरूरी है, मगर इससे भी जरूरी ये है कि तुम इस नेटवर्क के लिए काबिल हो,
क्योंकि खाली हाथ रिश्ते नहीं निभाती। मसले लेकर आने वाले हर जगह होते हैं, मगर जो हल लेकर आता है वही इदारे का असासा बनता है और वही आगे बढ़ता है। तनकीद को ज़ाती मत लो, इसे पेशा वराना तरीके से सुनो, इसमें से सीखने की बात निकालो और बाकी छोड़ दो। अपने शोबे का इल्म रखना काफी नहीं, इस इल्म को बरवक्त और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना आता हो तभी काम की बात है। काम छोटा हो आ बड़ा, जब तुम इसे पूरी तवज्जो और जिम्मेदारी से करते हो तो तुम्हारी आदतें बोलने लगती हैं और आदतें ही मंजिल तय करती हैं। पेशा वराना कामयाबी के लिए सिर्फ जहानत काफी नहीं, जहानत के साथ ही ईमानदारी, मेहनत और सब्र हो तो रास्ते खुद बनते हैं। बहाने बनाने वाले लोग कभी बड़े नहीं बनते, क्योंकि बहाना तुम्हें इस वक्त इत्मीनान देता है जब तरक्की की जगह आराम का इंतखाब करते हो। अपनी सलाहियतों को छुपाओ मत, उन्हें निक्किया, क्योंकि बंद मुट्ठी में हीरा भी किसी काम का नहीं। हर अच्छा लीडर पहले एक अच्छा फॉलोवर रहा होता है, जो सीखने से इनकार करता है वो कभी सिखाने के काबिल नहीं बनता। तुम्हारी प्रोफेशनल कदर तुम्हारी डिग्री से नहीं बल्कि इस मसले से तय होती है जो तुम हल कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। दफ्तर में जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है अक्सर वो सबसे कम काम करता है। खामोशी से काम करने वालों के नताइज बोलते हैं। अपनी गलती को फौरी तस्लीम करो, इसे छुपाने में जितनी तवानाई लगती है इससे आधी तवानाई में गलती सुधारी जा सकती है। हर कामयाब इदारे के पीछे वो लोग होते हैं जो अपनी अना से बड़े नहीं बल्कि अपने मकसद से बड़े होते हैं। अगर तुम वही करते रहे जो हमेशा करते आए हो तो वही नताइज मिलते रहेंगे जो हमेशा मिले हैं। तब्दीली तभी आती है जब तुम खुद बदलते हो। परेशानी में फैसला मत करो, गुस्से में जवाब मत दो और खुशी में वदा मत करो। ये 3 उसूल तुम्हारी प्रोफेशनल जिंदगी बचा सकते हैं। जो शख्स अपने काम से मोहब्बत करता है वो कभी थकता नहीं, और जो थकता नहीं वो अक्सर वहां पहुंचता है जहां दूसरे सिर्फ जाना चाहते हैं। टीम की नाकामी पर उंगली उठाने से पहले ये सोचो कि तुमने इस कामयाबी के लिए क्या किया, क्योंकि टीम का हिस्सा होने का मतलब हर नतीजे की जिम्मेदारी उठाना है। इल्म को अपने तक महदूद रखने वाला एक चिराग है जो सिर्फ खुद जलता है। इल्म बांटने वाला वो सूरज है जो पूरी दुनिया को रोशन करता है। हर शोबे में औसत लोग बहुत हैं। गैर मामूली बनने के लिए औसत से ज्यादा काम करना होगा और औसत से ज्यादा सीखना होगा। जो शख्स अपनी टीम की कामयाबी में खुशी महसूस करता है वो हमेशा मजबूत टीम बनाता है और मजबूत टीम ही बड़े काम करती है। दूसरों के साथ मुकाबला तुम्हें उनके बराबर ला सकता है, खुद से मुकाबला तुम्हें वहां ले जाता है जहां कोई नहीं पहुंचा। पेशा वराना तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बैरूनी हालात नहीं बल्कि वो कहानियां हैं जो तुम खुद अपने बारे में अपने जहन में सुनाते हो। काम को अधूरा छोड़ने की आदत एक छोटी सी आदत नहीं, ये वो जंजीर है जो तुम्हें कामयाबी तक पहुंचने से रोकती है। हर कामयाब इंसान की जिंदगी में एक ऐसा उस्ताद जरूर होता है जिसने उन्हें वो दिखाया जो वो खुद अपने अंदर नहीं देख सकते थे। अपने कंफर्ट जोन में रहना आरामदेह लगता है, मगर याद रहे कि फल हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत करने पर मिलता है। कारोबारी दुनिया में एतिमाद बनाने में बरसों लगते हैं और खोने में सिर्फ एक लम्हा, इसलिए हर फैसला सोच कर करो। जो लोग हर नई जिम्मेदारी को बोझ समझते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, जो इसे मौका समझते हैं वो हमेशा आगे निकलते हैं। मंसूबा बंदी के बगैर मेहनत अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। मेहनत और समत दोनों हों तो मंजिल मिलती है। पेशावर वो नहीं जो कभी गलती ना करे, पेशावर वो है जो गलती करे तो फौरी जिम्मेदारी ले और दोबारा वो गलती ना करे। जो इंसान अपने काम को सिर्फ पैसों के लिए करता है वो पैसे तक महदूद रहता है। जो अपने काम को मकसद समझता है वो पैसों से भी आगे निकल जाता है। सवाल पूछने से मत डरो, जो सवाल नहीं पूछता वो खामोशी से रह जाता है और जो पूछता है वो सीख कर आगे निकल जाता है। हर प्रोजेक्ट एक मौका है अपने आप को साबित करने का। इसे सिर्फ काम ना समझो बल्कि अपनी सलाहियतों का इजहार समझो। जो लीडर अपनी टीम की बात नहीं सुनता वो अक्सर वो गलती करता है जिससे इसकी टीम का कोई अदिन फर्द इसे बचा सकता था। अपने दुश्मन को हद से ज्यादा परेशान करना चाहते हो तो जिंदगी में सिर्फ 2 काम सीख लो। पहला काम, अपने आप को इतना कामयाब बना लो कि लोग तुम्हारी मिसालें देना शुरू कर दें। दूसरा काम, हर हाल में खुश रहना सीख लो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट
तुम्हारे दुश्मन की सबसे बड़ी शिकस्त होती है। याद रखो, दुश्मन तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहता है, लेकिन जब तुम